Hello friends, I am Professor S.S. Tiwari. I am Head Department of Hospital Administration, Science Institute of Paramedical and Allied Sciences. Today is 7th January 2023 and this is a day of activity. It's Saturday. So we have planned to conduct a group discussion among students of BHA second year, Bachelor of Hospital Administration second year students. We have divided them into two groups, and one group will support Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal as next Prime Minister candidate, and another group they are pro BJPians and they are supporting Narendra Modi as to continue as Prime Minister for third session. So we will just have a look कि वो क्या points कहते हैं, और अभी मैं आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा. हमारा ग्रुप ए है जो कि अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है. ग्रुप बी है वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं. सो देखते हैं ये बच्चे दे आर सो यंग, इनके माइंड में क्या चल रहा है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम गोइंग टू फ्लिप दिस कैमरा. नाउ आई विल स्टार्ट. या थैंक यू. ओके, सो प्लीज कीप साइलेंस गाइस. ये हमारा ग्रुप ए है. यू कैन से हाई टू एवरीवन. एंड दिस इज अवर ग्रुप बी. दिस इज ग्रुप ए एंड यू गाइस कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. आप लोग अपना नाम बता सकते हैं. इधर से स्टार्ट करते हैं. My name is Stanley. I am doing BHA and I am from Science Institute and I am supporting the Aam Aadmi Party. Okay, what about you? Yes, sir. My name is Arnas Noor. I am going to BHA second year. I am from Kashmir. I am supporting BJP. I'm sorry to correct you. You are from Aam Aadmi Party. Okay, no issue. Okay, what about you? What is your name? My name is Kajal Manwal and I am supporting Aman. Aam Aadmi Party. My name is Sakshi Singh and I am supporting Aam Aadmi Party. Very nice. So you are sure, na? You are with. Okay, and this is Group B. You will observe female power is here, na? Okay, introduce yourself one by one. My name is Sonia. I am going BHA second year. I supported BJP. I think we all are from BHA second year, so there is no need to mention that. Just take your name and from where you are and to whom you are going to support. Yes. Myself Diksha from Masudi. I am supporting BJP party. Okay, what is your name? Sir Diksha. Diksha. My name is Vibhuti Shukla. I am from Madhya Pradesh and I am supporting BJP party. BJP party. Okay, Shivraj Singh Chauhan. Huh? My name is Michael. I am from Masudi. Okay. What about you, ma'am? सर मेरा नाम निशा है. मैं देहरादून से ही हूँ और मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रही हूँ. वेरी नाइस. सो आप लोग हिंदी, इंग्लिश, वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं. हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदी भाषा पर गर्व है. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को, और मैं पहला पॉइंट रखने का जो परमिशन है वो मैं ग्रुप ए को देता हूँ. उसके बाद आप बीच में इंटरवीन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ग्रुप डिस्कशन में एक चीज़ याद रखें, हमें सिर्फ अच्छा बोलना ही नहीं है, हमें अच्छा सुनने वाला भी बनना है. वी हैव टू बिकम अ गुड लिसनर ऑल्सो, है ना. तो जब कोई पॉज देता है, आपको लगता है यहाँ मैं बीच में इस मोमेंट को कैच कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आप अपना पॉइंट रखें. ऐसा नहीं कि वी आर जस्ट फाइटिंग ऑन स्ट्रीट. इट्स नॉट लाइक दैट. वी विल ट्राई टू कीप इट प्रोफेशनल. ओके, सो ओके, नाउ ग्रुप ए. कौन पहला पॉइंट कहने जा रहा है? सर मैं जी बोलिए. जैसे कि हम सब जानते हैं आम आदमी पार्टी 2012 में उनका शुरुआत हुआ. तो उस बिहार पे एक अकेले बंदे ने, अरविंद केजरीवाल जी जो है हमारे, उन्होंने जैसे एक पूरा आंदोलन भी किया, बहुत कुछ किया. उसके बिहार पे आज इतना बड़ा हमारे यहाँ पे दिल्ली में, स्पेशली दिल्ली में उन्होंने बहुत कुछ किया है. उन्होंने बस बातें नहीं बोली, जो बात बोले उन्होंने करके दिखाया है. इसलिए मेरा ये है कि उनको बनना चाहिए नेक्स्ट इलेक्शन में. ये है मेरा विचार. ग्रुप बी, बीजेपी वाले हैं. बताइए कौन बोलना चाहेगा? भूल गए सर. कोई नहीं बोला. Okay. So Narendra Vibhuti. Modi ji is already a PM and we all know him very well. What he has done for our country. First of all, I am supporting the point of cleanliness in India. It is a very big thing in India because the poverty and the slum rate in India is very high. So the first point is cleanliness.
cleanliness. I am from Indore and I know that Indore has been the cleanest city of India in 5 years. What BJP has done in Indore and in Madhya Pradesh is that he has installed dustbins and garbage selecting people or collecting people there. In every 5 to 10 meters, you will see a dustbin or a garbage collecting area in every 10 meters in Indore, and that's why Indore is the cleanest city. Not about cleanliness, also about the proper sanitization. During the COVID times, it was very important for us to be sanitized and to be clean, and I think Narendra Modi ji and BJP party has done a very good thing in providing cleanliness to our country. Okay, so you are basically focused upon Swachh Bharat Abhiyan. Yes. You are very happy with that Yes. move. Okay, and you have specifically focused upon commitment level. Yes, sir. Like they are not other politicians who are just Yeah. making promises but they are never implementing them. Yes. Okay. Any other point? आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे आपके फ्रेंड्स? बोलना चाहते हैं एनी पॉइंट? सर, जैसे कि ये आम आदमी पार्टी का है, दिल्ली में तो बहुत कुछ, जैसे कि हमारे महिलाओं के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है, जैसे कि बस में ट्रैवल करने के लिए उनको टिकट नहीं चाहिए, और जैसे कि बहुत से कुछ उनके लिए बहुत कुछ करवाया है। और स्वच्छ भारत का जैसे कि हमारे बीजेपी के ग्रुप कह रहे थे, उन्होंने भी ऐसा कुछ कम किया नहीं, उन्होंने भी जब स्टार्टिंग पॉइंट में आया था उन्होंने ये सब कुछ किया। उनका लोगो भी जो है झाड़ू है, तो उन्होंने जो जितना किया उतना शायद मेरे हिसाब से बीजेपी ने किया नहीं। मैं एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहूँगा। Yes. अगर हम बात करते हैं वुमेन सिक्योरिटी की, Yes. अभी रिसेंटली कंझा वाला जो कांड हुआ, जिसमें आपने देखा कि एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। देयर वेर नो सिक्योरिटी कैमरा, देयर वेर नो पुलिस अवेलेबिलिटी ऑन रोड्स। बहुत बार कॉल गए पीसीआर को बट नो वन वाज रिस्पॉन्डिंग। पहली बात मैं कहना चाहूँगा, और अरविंद केजरीवाल का जो मूव मुझे लगा वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कि कभी भी उनके ऊपर कोई बात आता है वो एलजी के पास भाग गए, एलजी के दफ्तर के बाहर उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया। एज ए सीएम उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना चाहिए कि भाई ये सबको तो एलजी, मतलब आप जो भी बुरा हो रहा है वो एलजी कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है वो आम आदमी पार्टी कर रहा है। सो थोड़ा सा मुझे ये लगा। और डेफिनेटली क्लीनलीनेस की बात आप करते हैं, दिल्ली बहुत अच्छा है, लेकिन पॉल्यूशन के मामले में अगर हम देखें तो एशिया में कहीं ना कहीं वो नंबर 1 जा रहा है। जो पराली जलाई जा रही है, जो वहाँ पर लोगों को अस्थमेटिक डिसऑर्डर हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, वो बहुत ही पैथेटिक है। इवन स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है कोविड की वजह से, नहीं सफाई के कारण, पॉल्यूशन रेट के कारण। जो पीएमआर रेट है इट्स वेरी हाई। तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके बाद मैं आप लोगों के पास आता हूँ। उस पर मैं ये कहना चाहूँगा, स्पेशली जो गंद करता है, ये करते हैं, ये हम लोग हैं। अब जो सीएम है ये लोग आके तो करते नहीं, ये लोग बस ये लोग बोल सकते हैं। और जो हमें करना चाहिए, हम जनताओं को वो देखना चाहिए, हमारे भारत को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, कैसे हमें साफ़ सफाई रखना चाहिए। तो इसलिए मैं हमारे सीएम इन सबको मैं नहीं बोल सकता, मैं हम जनताओं को बोलना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगा। यस सर, मतलब जब तक सेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, हम कोई भी प्रोग्राम चला लें वो सक्सेसफुल होने वाला नहीं। अच्छा, सिक्योरिटी के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, सिक्योरिटी के मामले में कहना तो मैं ओके, चलिए हम आपके फ्रेंड्स के पास जाते हैं। आपका नाम एक बार बताएंगे आप? सर मेरा नाम आदिल हसनवार। सॉरी, आदिल हसनवार। आदिल। ओके आदिल, आप कश्मीर से हैं। ओके, आप आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं अपने कश्मीर में आगे आते हुए और अरविंद केजरीवाल को एज ए नेक्स्ट पीएम बनते हुए? क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? सर उन्होंने बहुत कुछ किया कश्मीर में। जब वहाँ पे सरकार नहीं चल रही थी पिछले साल, तो वहाँ वो बीजेपी कांग्रेस वाले खुद वहाँ पे आ गए। उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे किया सर कश्मीर में। सर क्योंकि जो बीजेपी था वहाँ पे प्रेसिडेंट जो बीजेपी का था कश्मीर में, सर उन्होंने कुछ नहीं किया सर जितना कांग्रेस ने किया वहाँ पे। फिर वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुई कश्मीर में। जब कांग्रेस आया था पिछले साल वहाँ पे सरकार नहीं थी उन दिनों। सर उन्होंने मेरे पॉइंट हिसाब से सर उन्होंने बहुत कुछ किया कश्मीर में सर। अच्छा, आप कहते हैं कि बीजेपी इज़ नॉट गुड फॉर कश्मीर, बट डेफिनेटली कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या दूसरे ऑप्शन बेहतर हो सकते हैं। जी सर। ओके,
ओके चलिए हम चलते हैं ग्रुप बी के पास। आपका क्या सोचना है कि आप सेटिस्फाइड हैं कश्मीर में बीजेपी ने कुछ नहीं किया? सर 370 आर्टिकल Yes, 3 sir. तलाक, इन पे कुछ आप बोलना चाहेंगे? सर 1947 में जब ये हमारे कांग्रेस जो थे पीएम हमारे पहले क्या था हाँ, उन्होंने जब ये धारा 370 लगाई गई थी उस टाइम पे काफ़ी मुसलमान ये सब चला था, तो हमारा कश्मीर और जम्मू बढ़ गया था। और अभी रिसेंटली 2019 में बीजेपी द्वारा ये 370 धारा हटाई गई है, जिससे मुसलमानों को काफ़ी हद तक जो ये 3 तलाक का हुआ था, बहुत सारे केसेस चल रहे थे 3 तलाक के बेस पे, ये काफ़ी कुछ हद तक अब काफ़ी सुधार हो चुका है बीजेपी के द्वारा। जैसे हमारे वो बोल रहे हैं कि कांग्रेसी ने और इन्होंने बहुत कुछ किया है, पर अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि 370 हटने से जो हाँ। हमारे कश्मीर के जो भाई बहन हैं उनको ज़्यादा रोजगार के अवसर, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगा। यस सर। मतलब कहीं ना कहीं वो मुख्य धारा के साथ मेन लाइन में जुड़ सकेंगे Yes, और sir. कश्मीर भी दिल्ली, बेंगलोर और पुणे जैसी सिटीज़ की तरह डेवलप हो पाएगा। यस सर। ओके, वेरी नाइस। ओके, और कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों से कुछ सुनना चाहूँगा। आपको अरविंद केजरीवाल ने सबसे अच्छा क्या लगा? यस, अरे मास्क निकालो। एनीथिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं। नो, या आप बोलिए। वैसे आम आदमी पार्टी बहुत बाद में आई, बीजेपी थी पहले से, पर आम आदमी पार्टी जब से आई है दिल्ली में बहुत कुछ सुधार हुए हैं। जैसे बिजली का बिल वगैरह, पानी का बिल, ये सब बहुत कम हुए हैं, लोगों को इससे बहुत हेल्प मिली है। और जो गरीब थे उनके लिए भी बहुत कुछ किया है आम आदमी पार्टी ने, जैसे राशन वगैरह, इन सब में भी बहुत कुछ हेल्प करवाती है। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी के जो शराब कांड का जो घोटाला है, शराब के जो ठेके देने पर जो बहुत पैसे खाए गए हैं, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, आप उसको बेबुनियाद मानते हैं या आपको लगता है कि ये बीजेपी का एक अच्छा मूव था जिससे कि आम आदमी की इमेज थोड़ी बहुत ज़रूर खराब हुई है? अब शराब अभी जो शराब का जो अभी मैटर हुआ था, आप लोगों को पता होगा, आप न्यूज़ देखते हैं, आप बता सकते हैं कुछ? सर वो तो शराब का तो सर एक बेस पे कहा जाए तो गवर्नमेंट बेस ही करते हैं, वह लीगली होते हैं एक तरह से। तो उस पर अब क्या बोले, अभी देखो जैसे कि बीजेपी ने आरोप लगाया है, तो मेरे हिसाब से वो इतना ज़्यादा वो है नहीं, मीन्स फैक्ट नहीं, इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकल के नहीं आया। हाँ वही तो, जैसे कि सीएम है, सीएम को भी अपने ऊपर से जैसे कि पीएम से भी बात करना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, उसके बाद ही अप्रूवल करना पड़ता है, तो फिर उस हिसाब से सारे मिले रहते हैं सर। ऐसा कोई है नहीं कि अकेले एक आम आदमी पार्टी ने ही सब कुछ किया हो या फिर बीजेपी ने ही सब कुछ किया हो, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, आप, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, हम इसको वाइंड अप करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, उसका मैं फाइनल कमेंट्स दूंगा। आप अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को 1, 2, 3 या कुछ स्टेट में गवर्न करते हुए देखना चाहते हैं, या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल को अभी और टाइम चाहिए एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने के लिए? नहीं सर, मेरे को ही लगता है सर वो प्राइम मिनिस्टर के लिए ठीक है अभी फ़िलहाल, मेरे को लगता है, मेरा तो यही एक वो है पर्सपेक्टिव है कि वो कर सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो बहुत कुछ हमारे देश में बहुत कुछ सुधार आ सकता है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, ऐसा कर लगता है सकते हैं। मेरे को। Yes, sir. ओके, आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए अरविंद केजरीवाल के। आप कोई सुझाव उन्हें देना चाहेंगे जो उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए अपने अंदर? सुझाव सर ये कि जैसे कि अभी वाला जो कांड हुआ था, ये सिक्योरिटी बेस पे ये सब, हाँ, तो उसके बिहाफ पे थोड़ा जो है सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। मतलब महिलाओं की सुरक्षा को और सुदृढ़ करते हुए अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना हाँ जी, चाहिए। हाँ जी सर। ओके, बहुत अच्छा आप लोगों का एक व्यू पॉइंट था ग्रुप ए का, जो कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब और दिल्ली से उठकर एक सेंटर में भी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बन सकते हैं। अभी वो तैयार हो चुके हैं, उन्हें तैयारी की और ज़रूरत नहीं है, ही इज़ एक्सपर्ट, इनका ऐसा कहना है। तो देखते हैं 2024 में क्या होता है। अब हम ग्रुप बी के पास फाइनल राउंड के लिए आ रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि अभी भी जैसे नरेंद्र मोदी पिछले 2 बारों से हम देख रहे हैं, हर बार ज़्यादा मेजॉरिटी से जीत रहे हैं, बहुमत से जीत रहे हैं। इस बार आपको क्या लगता है कि बीजेपी अगर जीतती है तो कितनी सीटें वो ले जा पाएंगी, और मोदी के अलावा और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बोलना
बोलना चाहूँगी Yeah. कि जैसे कि ये बोल रहे हैं कि अभी 3 तलाक के ऊपर था और एजुकेशन सिस्टम इतना लो हो गया है दिल्ली में। पहले तो अच्छा कांग्रेस के टाइम पे इतना अच्छा था, बेनिफिशियल था, जैसे कि मैं स्टडीज़ करती थी और जैसे कि पहले शीला दीक्षित थी, कांग्रेस अच्छी थी, मैं तो कांग्रेस को अच्छा मानूंगी। यू आर फ्रॉम दिल्ली राइट? यस, आई एम फ्रॉम दिल्ली। और जैसे कि कांग्रेस थी पहले, जब जैसे कि 12th के बाद इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती थी, बट अभी जैसे कि केजरीवाल के चक्कर में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, बल्कि पूरा लो हो गया एजुकेशन। ये कह रहे हैं कि हमने स्कूल्स बनाए हैं, ये बनाए हैं, बट ये इसलिए इन्होंने बनाए हैं क्योंकि उनको जैसे ईयर टू ईयर स्कॉलरशिप मिलती थी जिसके मतलब हाई ऑफ मार्क्स आते थे। अभी उनकी जो स्कॉलरशिप काट के इन्होंने इस बेसिस पे स्कूल्स वगैरह बनाए हैं। और जैसे अभी MCD इलेक्शंस हुए थे, Oh, I'm so sorry. There is a power connection. हाँ, जैसे कि अभी MCD इलेक्शंस हुए थे, मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती आम आदमी पार्टी को, क्योंकि Okay. ओके बस थैंक ओके, सो आपका कहने का मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल ने इसकी टोपी उसके सर करी, यहाँ का जो पैसा जो कॉलेज के बच्चों को मिल रहा था वो उन्होंने स्कॉलरशिप वगैरह सारी खत्म करके वो चीज़ें स्कूल में लगाई। और जैसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे, इस वजह से जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं सबको, इस वजह से उनको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं। लेकिन दिल्ली वाले समझ नहीं रहे हैं कि फ्री के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, अच्छी गवर्नमेंट फ्री की रेवड़ी के चक्कर में लोग परेशान हो रहे हैं। ओके, बट मैं इसके ब्याह में मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कि अभी इन्होंने बोला दिल्ली में रहते, बट पहले जो था हमारे सरकारी स्कूल दिल्ली में, मैं भी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, पहले जो सरकारी स्कूल था उधर का एजुकेशन बहुत ख़राब था, उधर सर को भी कुछ ना कुछ कर लेते थे, ऐसे ऐसे होता था। मगर अभी जो है ना, अभी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा मैंडेटरी सरकारी स्कूल में है। मैं केरला से भी बिलोंग करता हूँ, जैसे कि हमारे केरला में जो है मेरे फादर मदर, मेरे ब्रदर सिस्टर, ये सब लोग केरला में हाई जो वो रैंक दिया जाता है स्कूल में, वो है सरकारी स्कूल को, फर्स्ट प्रायोरिटी सरकारी स्कूल को दिया जाता है, क्योंकि उधर का जो स्टडीज़ होता है, जो भी एजुकेशन होता है वो हाई लेवल होता है। ये नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ये है, मगर जो किया गया है, जो ऐसे अभी सुधार है हमारे दिल्ली में, जैसे एजुकेशन के बिहाफ पे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई लेवल अभी सरकारी स्कूल है। पहले एक टाइम में सरकारी स्कूल को कोई पूछता नहीं था, अभी हर एक अभी जो भी है, कोई रिच बंदा भी हो, उनके फैमिली के बच्चे भी सरकारी स्कूल में जाते हैं। इसलिए एजुकेशन के हिसाब से अभी के टाइम में केजरीवाल ने बहुत ज़्यादा कुछ सरकारी स्कूल में बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ हो रहा है। और जैसे कि अभी बीजेपी ने भी ऐसा नहीं है कि नहीं किया, बीजेपी ने भी बहुत कुछ किया है, स्कॉलरशिप दिया गया है, बहुत कुछ हुआ है, केजरीवाल ने भी किया, सब ने किया है, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं किया। बट हम ये है कि हम समझते नहीं है, हम अपना जो हम देखते हैं वो ही निकालते हैं। मतलब आपको कहने का मतलब है बीजेपी ने भी किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी उनसे बेहतर कर रही है और शायद आगे और अच्छा करेगी। यस सर, ऑब्वियसली करेगी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के कितने मिनिस्टर्स के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, ये आप जरूर पता करके रखें। हम अगले डिस्कशन में देखेंगे कि उनके खुद के कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या वो खुद बीमार होने पे सरकारी अस्पताल जाते हैं। क्योंकि मैंने सुना जब उनको खांसी हुई तो वो बेंगलोर गए, ही वॉज नॉट डिपेंडेंट अपॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। एनी हाउ, ये एक मैटर ऑफ डिस्कशन है और बहुत सी बातें कहने के लिए अरविंद केजरीवाल ने शुरू में वो ऑटो में कई बार गए, उन्होंने कहा कि हम पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं लेंगे। हालांकि उनके अभी 14 कमरों का उनका बंगलो है और वो लैंड रोवर में घूमते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि मैं कहता हूँ उसमें कुछ गलत नहीं है, अगर गवर्नमेंट सुविधा दे रही है तो ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो सीएम की प्रोटेक्शन का सवाल है। क्योंकि आज अगर वो प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो डेफिनेटली कई बार हम देखते हैं कि ऐसे जो असैसिनेशन जो है वो भी होते हैं। सो इट्स गुड फॉर अरविंद केजरीवाल। और मैं ये समझता हूँ अरविंद केजरीवाल का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, जो मैं फाइनल सबमिट करते वक्त बोलना चाहूँगा, कि बीजेपी ने, कांग्रेस ने पूरा दम लगा लिया, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को, जो कि एक कॉमन मैन था, उसको हटाना उनके लिए एक असंभव सा एक सपना हो गया है। मुझे नहीं लगता कि अगर नरेंद्र मोदी सेंटर से नहीं हटेंगे तो अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली से हटने वाला नहीं है। और लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं इतना ज़्यादा कि आप देखो कि 57 सीट्स लेके जा रहे हो 60 में, तो अपने आप में बताता है कि लोग खुश हैं। तो हमें, और हालांकि फैक्ट एंड फिगर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग रेवड़ी बोलते हैं कि इस चक्कर में लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट आने वाला वक्त बताएगा। और डेफिनेटली आप लोगों ने अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से रखा। और अब हम फाइनल कमेंट्स लेते हैं आप लोगों से। आप बताएं कि अभी भी हम जैसा सोचते हैं केजरीवाल को थोड़ा और टाइम चाहिए पीएम बनने के लिए, अभी थोड़ा और अनुभव चाहिए। मोदी जी अभी भी बहुत अनुभवी हैं,
और मोदी जी की ऐसी कोई 2 नीतियां बताइए जिससे आप सबसे ज़्यादा खुश हैं और आपको लगता है उनसे अच्छा और कोई नहीं है। एनीवन? सर मैं कनेक्टिविटी के पर बोलूँगी। सर कांग्रेस के टाइम पे हमारे उसमें बाहर की कंट्री से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। यू मीन टू से फॉरेन ट्रेड? या इतनी नहीं थी सर, मतलब जैसे अब हो गई है। कोविड के टाइम पे हम मेडिसिन एक्सचेंज हुई है। तो जो व्यापार नीति है आपका कहने का मतलब है वो हमारी सरकार की बहुत अच्छी है। हमारा जो आप कह सकते हैं कि जीएनपी जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। बाहर से बहुत सारी कंपनियां आकर आज भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं। बहुत अच्छा, आप लोगों ने भी अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से रखा। एक जो पर्सनल मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, एक ऐसी चीज़, ऐसी तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट मैं पर्सनली फील करता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, और वो है बेसिकली आयुष्मान योजना। वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आज लाखों लोगों की, इनफैक्ट करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बच चुकी हैं। मैं समझता हूँ पहले लोग बीमार पड़ते थे, ऑपरेशन का खर्चा उठा नहीं पा रहे हैं, उनको लगता था कि अब कुछ हो नहीं सकता, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है, अब इनको मरना ही है क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। और धीरे धीरे उसके परिवार के लोग भी उसे मरने के लिए छोड़ देते थे क्योंकि कोई होप ही नहीं थी, उनके पास पैसा ही नहीं था। लेकिन अभी आयुष्मान योजना 30 रुपीज़ में आपको 5 लाख तक का जो हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंसेस है वो गवर्नमेंट बियर कर रही है। मेरे हिसाब से जान है तो जहान है। मैं सबसे अच्छा ये समझता हूँ कि ऐसा किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। आज हम देखते हैं इंद्रेश हॉस्पिटल में, ऐसे कई हॉस्पिटल हैं, कोरोनेशन वगैरह, जहाँ पर आज बीमार गरीब इंसान जाता है और आराम से ट्रीटमेंट कराता है, ठीक होकर घर आता है। तो मुझे लगता है ये सबसे बहुत अच्छा पॉइंट जो उन्होंने किया। हालांकि व्यापार नीति, स्वच्छ भारत अभियान, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक सबसे बड़ा टास्क जो अरविंद केजरीवाल के लिए रहेगा और नरेंद्र मोदी के लिए भी, कि वो कैसे महंगाई को कम करते हैं। हम देखते हैं कि जो चीज़ हम 30 रुपये की खरीदते थे, आज वो 60 और 70 में विद इन 2-3 ईयर्स में देख रहे हैं कि अब जो रेट बढ़ रहे हैं वो 100%, 200%। पहले 1 या 2%, 1 या 2 रुपये कंपनियाँ बढ़ाती थी। आज की डेट में आप जो सामान लेकर आ रहे हैं, आप देखेंगे 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हर महीने रेट नए आ रहे हैं। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का कुछ इसमें इंटरफेरेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसा रूल बनाना चाहिए कि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये रेट क्यों बढ़ा रही हैं, उन्हें इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए और किस रेट से बढ़ा रहे हैं, कुछ इन पर लगाम लगाई जानी चाहिए। क्योंकि जब तक एक इंसान की थाली में आने वाला खाना सस्ता नहीं होगा, आप कितनी ही पॉलिसी क्यों ना कर ले, हर एक गवर्नमेंट मुझे लगता है फेल है ना। रोटी, कपड़ा और मकान और हेल्थ, मुझे लगता है इन पर अगर काम करें तो सच में एक आम इंसान के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और जो कहा जाता है कि अडानी और अंबानी की गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं होगा। मोदी कैन डू इट, हमें होप है उनसे, हमें केजरीवाल से भी बहुत होप है। देखते हैं आगे क्या होता है भारत की जनता। या प्लीज़, या जैसे कि आयुष्मान योजना है तो वो जो जैसे कि दिल्ली की पॉपुलेशन है वो चाहती है कि आयुष्मान योजना दिल्ली में आए, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो बिल्कुल नहीं आने दे रही है। मेरे पापा ने ऑलरेडी इंक्वायरी की थी कि आयुष्मान हो सकता है, कह रहे हाँ हम डाल सकते हैं, लेकिन जो ये आम आदमी पार्टी है वही ये स्कीम आने नहीं दे रही। जब वो बीजेपी को डालना चाहती है तो इनको क्या प्रॉब्लम है इनसे? अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं कि हमने जो मोहल्ला क्लिनिक और ये सब जो स्कीम चलाई है, हम उनको ज़्यादा क्रेडिट दिलवाना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी है वो नहीं है स्कीम को आने दे रही। वो आयुष्मान को इंटेंशनली नहीं आने दे रहे कि उनके जो है रेट्स, वो आप कहना चाहिए जो उनके जो पॉइंट्स हैं वो कम हो जाए। यस सर। ओके, सो अभी हम वाइंड अप करने जा रहे हैं और हमारे BHA सेकेंड ईयर के बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया, मैं अप्रिशिएट करूँगा। और आप लोगों ने अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से रखा। और अब हम फाइनल सबमिट की तरफ जाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीवन हु वाज वाचिंग अस एंड वाज पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। इट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर देम, पहली बार उन्होंने इस तरीके से कैमरे को फेस किया। इवन दो दे आर नॉट स्टूडेंट ऑफ मास कॉम, बट they were tremendous and they have really shown the caliber they are having. I think they will do very well in their coming future. और ये उनके इंटरव्यू के लिए भी एक तैयारी है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में हॉस्पिटल्स जो है ग्रुप डिस्कशन को सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट रखते हैं, तो आज इन्होंने ग्रुप डिस्कशन किया। हमने 2 ग्रुप में बांटा और दोनों ही ग्रुप ने बहुत अच्छे तरीके से अपने पॉइंट्स रखे और मैं इनके बेहतर फ्यूचर के लिए इन्हें बेस्ट विशेस देता हूँ। हम मिलेंगे अगले इवेंट में, अगली एक्टिविटी को लेकर, और फिर एक नया पॉइंट होगा
और तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच। गुड बाय, बाय।